Let's do Brahmanad. Om. Om. Santi. 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 Swastha. Dear student, previous class I discussed about the percentage, composition, molecular formula, empirical formula and some problem related to the molecular formula and empirical formula. Now I am going to discuss about the stoichiometry calculation. Stoichiometry calculation. What is the meaning of stoichiometry calculation? Stoichiometry calculation give the quantitative relationship between reactant and product. गोटे केमिकल रिएक्शन रे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मध्य थिबा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन द्वारा आमे बुझाई थाउ. लेट मी एक्सप्लेन विथ एग्जांपल. सपोज कहा N2 plus 3H2 gives 2NH3. This is a balanced chemical equation. In this balanced chemical equation, here 3 is called stoichiometry coefficient. Here 2 is called also stoichiometry coefficient for NH3. Here nothing means 1. किछि नहीं हेले 1 अछि हम कहबा. This 1 is the stoichiometry coefficient of nitrogen molecule. By the help of balanced chemical equation, we can able to predict a quantitative relationship between these two reactant and the product. Also, we can predict a relationship between this reactant and this reactant. इस reactant को इस product मध्य गोटे quantitative relation बाहर कर परिया. This quantitative relation is called stoichiometry calculation. Let me explain the example. Suppose I want to explain the quantitative relationship between reactant and product in terms of molecule. Then how can I explain? I am going to say 1 molecule of nitrogen combine 3 molecule of hydrogen form 2 molecule of ammonia. 1 molecule of nitrogen नहीं 3 molecule of hydrogen सहित रिएक्शन कले 2 molecule of ammonia मिलता है. तो हम किमती लिखिबा in terms of first suppose molecule. Then I can write here 1 molecule then I can write here 3 molecule then I can write here 2 molecule. जो stoichiometry coefficient नहीं कि 2 molecule 3 molecule 1 molecule बोली लिख परिबा. Suppose I want to express this quantitative relation in terms of Avogadro number. Suppose आमे Avogadro number हिसाबे बुझेबा चाहेबा तो केमती बुझेबा in terms of Avogadro's number. 1 into 6.022 into 10 to the 23 molecule. Next one लिखिए 3 into 6.022 into 10 to the 23 molecule. Next one लिखिए 2 into 6.022
molecule. Suppose I want to write the quantitative relationship in terms of mole. मोल हिसाब से आम लिखा चाहिए तो कौन लिख परिया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म्स 2 मोल ऑफ ammonia. Just following the coefficient. Look at that. This is your Avogadro number. This is your Avogadro number. समझते हैं कि हमें एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जो कोएफिशिएंट होते हैं. नेक्स्ट सपोज हमें देखिबा मास हिसाब रे बुझाइबा हम चाहिबा मास हिसाब रे नाइट्रोजन नो मास एटा हम पकेबा पड़े एटॉमिक मास हो कि मॉलिक्यूलर मास हो. नाइट्रोजन एटा गोटे मॉलिक्यूल सो इट इज बाउंड टू राइट हियर मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज almost 28 gram. गोटे मॉलिक्यूल अछि. So here we think about the 28 gram. Suppose 2 molecule present, then we can write 2 into 28. Now look at that. Here 3 molecule present. Molecular mass of hydrogen is your how much? 2.016. So here I can write 3 into 2.016 gram. Similarly, think about the ammonia molecule. There are 2 ammonia molecule are present here. So here I can write 2 into 17 gram because molecular mass of ammonia is your 17 gram. Molecular mass of ammonia is your 17 gram. So here it is bound to write 2 into 17 gram. Suppose I want to write the quantitative relationship in terms of volume. Volume हिसाब से हम लिखिबा and we know that the volume must be expressed in terms of liter or in terms of ml. And the condition is your at NTP. Suppose I mean liter रे लिखे हो चाहिए. Nitrogen is a gas, hydrogen is also gas, ammonia is also gas. समझते गैसीय स्टेट रहया दरकार नले वॉल्यूम रिलेशन करि परिबे नै. तो एटा हम कोन लिखिबा 1 into 22.4 liter. Then here I can write 3 into 22.4 liter. Here I can write 2 into 22.4 liter. Look at that. This relation is written in terms of molecule. This relation is written in terms of Avogadro number. This relation is written in terms of mole. This relation is written in terms of mass. This relation is written in terms of volume. There are different ways to express the quantitative relationship between reactant and product. Let me explain by another example. Hydrogen react with the chlorine gives a hydrogen chloride. Then how can I write the stoichiometric relation? Suppose first is your in terms of molecule. Here 1 is present, here also 1 is present, here 2 is present. This is a balanced chemical equation. So here I can write 1 molecule. 1 molecule means 1 molecule of hydrogen. Here I can also write 1 molecule of chlorine. Here I can write 2 molecule. Clear? Suppose
I want to write the quantitative relationship between reactant and product in terms of Avogadro's number. Avogadro's number means 6.022 into 10 power 23. So here I can write 1 into 6.022 into 10 power 23 molecule. Here also I can write 1 into 6.022 into 10 power 23 molecule. Similarly, here I can write 2 into 6.022 into 10 power 23 molecule. एठारे हम लिख पाया 1 into 6.022 into 10 power 23 molecule कारण एठे 1 अछि किछ नै माने 1 अछि एठा हम कोन लिख पाया 1 into 6.022 into 10 power 23 molecule काई लिखबे एठे 1 अछि एठ लिखबे हम कोन 2 into 6.022 into 10 power 23 molecule काई लिखबे एठे 2 अछि suppose I want to write the quantitative relationship in terms of mole. Then here I can write 1 mole. Here I can write 1 mole. Here I can write 2 mole. Suppose I want to explain the stoichiometric relationship between reactant and product in terms of mass. This is your molecule, so here it is bound to write the molecular mass. Suppose here an atom is present, then it is bound to write the atomic mass. Since hydrogen is a molecule, so it is bound to write here molecular mass. The molecular mass of hydrogen is 2.016 AMU. Gram molecular mass of hydrogen means 2.016 gram. So here I can write 2.016 gram. Similarly, if you think about chlorine, chlorine having atomic mass 35.5, molecular mass is your 71. So here it is bound to write 71 gram. Here HCl is present. The molecular mass of HCl is 36.5. So here I can write 2 into 36.5 gram. Similarly, suppose I want to write the quantitative relationship in terms of volume. Volume at NTP. Suppose I want to write the volume in terms of liter. Hydrogen is a gas, chlorine is also a gas, HCl present in gaseous state. Here I can write 22.4 liter. Here I can write 22.4 liter. Here also I can write 2 into 22.4 liter. is a relationship लिखा है in terms of volume. Suppose I want to ask a question: how much chlorine will be needed for 5 mole of hydrogen to form hydrogen chloride? Suppose एक question बचरा हो केते क्लोरीन आवश्यक पड़िबो 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन सहित रिएक्शन करी हाइड्रोजन क्लोराइड बाहरियो तो आमे केमति करबा बाय अप्लाइंग दिस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आमे जानि जे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल रो क्लोरीन सहित रिएक्शन करी 2 मोल रो HCl तैयारी करते क्लियर our question how much chlorine will be needed for 5 mole of hydrogen 1 mole of hydrogen को 1 mole of chlorine आवश्यक पड़े 5 mole of hydrogen को obviously 5 mole of chlorine आवश्यक पड़ेगा suppose question बचला
1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को केते मोल रो क्लोरीन आवश्यक होले हम कहलो 1 मोल रो क्लोरीन सपोज कहो 1 मोल रो हाइड्रोजन को केते ग्राम रो क्लोरीन आवश्यक पड़ियो लुक एट दैट 71 ग्राम 1 मोल को 71 ग्राम सपोज कहो 5 मोल रो हाइड्रोजन को तो 5 मोल को 71 into 5 कारण कौन 1 मोल को 71 ग्राम 5 मोल को 5 into 71 ग्राम सपोज 5 मोल क्लोरीन नबा केतुटा हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल मिलियो 1 मोल रे 2 into 6.022 into 1023 मॉलिक्यूल मिलियो 5 मोल रे केते मिलियो 5 into 2 into 6.022 into 1023 molecule मिलेगा. By keeping this quantitative relationship, we can able to solve many problem. मोल देइथिले मास पचारिबो मोल देइथिले मोल पचारि परिबो मास देइथिले वॉल्यूम पचारि परिबो मास देइथिले नंबर पचारि परिबो डिफरेंट रिलेशनशिप हम करि परिबो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मध्य रे. So I can write the different types of stoichiometric calculation. Number one is your mole relationship. Number two is your mass relationship. Number three is your volume relationship. Number 4 is your mass volume relationship. तो मतलब और डिफरेंट टाइप रो रिलेशनशिप बाहर करि परियो. क्लियर? Now I want to explain some stoichiometric relationship and some problem. First stoichiometric relationship is your mole relationship. एटारे मोल देइथिबो मोल पचाइबो दैट मींस मोल ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देइथिबो से अनुसार मोल ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाहर करिया कहिथिबो. मोल ऑफ द रिएक्टेंट देले प्रोडक्ट रो बाहर करिया मोल रे केते सेबले प्रोडक्ट देले रिएक्टेंट बाहर करिया न गोटे रिएक्टेंट देइथिबो आ गोटे रिएक्टेंट पचाइथिबो. सपोज आई वांट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. Problem number 1. Calculate the number of moles of hydrogen gas produced when 18 moles of iron react with steam to produce Fe3O4 and hydrogen gas. ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट काढवाटा होची वेरी इंपोर्टेंट. की रिएक्टेंट हबो की प्रोडक्ट हबो और कोन रिएक्शन लिखा हबो कोन केमिकल इक्वेशन लिखा हबो सेटा जदि तमे जानि देबा ताले प्रॉब्लम करियाटा इजी हो जिवो. ये जो सेंटेंस रो तमे की रिएक्टेंट की प्रोडक्ट काढिया आ ताको केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखिबा आ ताको बैलेंस कर देला पारे प्रॉब्लम करियाटा इजी. तेणु भल भाव क्वेश्चन ना पढ़िया दरकार आ की रिएक्टेंट की प्रोडक्ट बाहर करिया दरकार. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस when 18 mole of iron react. Look at that. Here iron react with the steam. Steam means hot water to produce Fe3O4. Iron react with the steam. That means here iron is the reactant. Also steam means hot water. Hot water is also reactant. And which is the product? Your product is your Fe3O4. So here I can write Fe3O4. Iron react with steam to
produce Fe3O4 means your iron is one reactant. Steam, that means hot water which is present in the gaseous state, that is your H2O gas, is the other reactant. Here Fe3O4 is the product. Look at that, here also another product is formed, that is your byproduct, hydrogen gas. एटे दीटा प्रोडक्ट साइड रहबो दीटा रिएक्टेंट साइड रहबो तेनो एटे मु बाध्य कि हाइड्रोजन लिखि तो हमर गोटे रिएक्शन अछि जो रिएक्शन रे दीटा रिएक्टेंट अछन गोटे आयरन आ गोटे वाटर आ दीटा प्रोडक्ट भी अछि जोटा रे कोन Fe3O4 गोटे प्रोडक्ट आ गोटे हाइड्रोजन को हम बाय प्रोडक्ट नबा एती तुम बाहर करियो पड़ियो स्टेटमेंट देखियो पड़ियो तापर एती रिएक्शन लिखबा पड़ियो नाउ आवर एम टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन हमें ये जो इक्वेशन को बैलेंस करियो बैलेंस कले एटा हम लिखबे 3Ap नेक्स्ट एट रखिया 4H2O नेक्स्ट एट कोन रखिया ओनली Fe3O4 एटा कोन लिखिया 4 बतन बैलेंस अछि ना नहीं चेक करो थरे बैलेंस हे गला माने तमरो प्रॉब्लम रो 50% है आ किछ नहीं इजी बतन ए साइड को सब देखि लेखि दो अच्छा हमर कोन दरकार मोल ले दरकार देखो मोल देछि मोल 50 तेनोटे मोल मोल रिलेशनशिप कराला 18 मोल ऑफ आयरन देला 18 मोल ऑफ आयरन देला पचला केते मोल रो हाइड्रोजन बाहरिबो एटा 50 कितने मोल रो हाइड्रोजन बाहर अच्छा हमें यदि स्टोचियोमेट्रिक रिलेशनशिप अप्लाई करिया त कोन लिख परिया 3 मोल आयरन एडी कोन लिख परिया 4 मोल ऑफ वाटर एडी कोन लिख परिया 1 मोल ऑफ Fe3O4 एडी कोन लिख परिया 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन ये जो स्टोचियोमेट्रिक रिलेशनशिप जस्ट में पढ़िले हम केमति लिखला मोल हिसाब रे नंबर हिसाब रे वॉल्यूम हिसाब मास हिसाब लिखा हमने तो 18 मोल टू केते मोल रो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो आमे कोन जेम सिखले जो स्टोचियोमेट्रिक रिलेशनशिप रो 3 मोल ऑफ आयरन when react with 4 मोल ऑफ water then 1 मोल ऑफ Fe3O4 and 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन are produced एटा हम जानि जे एटा जो वाटर आ आयरन रो जे रिलेशन अछि किछ दरकार नै कम में हमको आयरन देछि हाइड्रोजन 50 तेनो तो हमें ई टर्म गुडा को लिखले हबो न लिखले भी हबो यदि बचा थांदा वाटर को हाइड्रोजन ताले वाटर और हाइड्रोजन के इधर रिलेशन लिखि दो यदि हम बचा थांदा आयरन को Fe3O4 तबे आयरन और Fe3O4 इधर के रिलेशन तमे लिखि दो जेतु मते पचारिछि आयरन देछि आउ हाइड्रोजन पचारिछि तो मते केवल ई जो रिलेशन दरकार तो हम कोन लिख परि 3 मोल ऑफ आयरन क्लियर 3 मोल ऑफ आयरन नेले केते मोल रो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हेते 4 मोल सो तमे सेंटेंस वाइज लिखि पारा नाले जस्ट symbolically method लिख पारा 3 mole of iron equivalent to how much of hydrogen 4 mole of hydrogen 1 mole of iron ले केते बाहर हाइड्रोजन 4/3 mole of hydrogen तोर क्वेश्चन में बचा 18 मोल ले केते हाइड्रोजन मिलियो then I can write 18 mole of iron equal to how much 4/3 into 18 equal to how much 24 mole of hydrogen our question find out the number of mole of hydrogen gas produced when 18 mole of iron react with steam to produce Fe3O4 and hydrogen gas so our answer is required number of mole
4 mole. Clear? Next I will explain about the mass relationship. Mass relationship means mass ଦେଇଥିବ mass ପଚାରିଥିବ. ଏକରେ reactant ର mass ଦେଇଥିବ product ର mass ପଚାରିଥିବ, ନହେଲେ product ର mass ଦେଇଥିବ reactant ର mass ପଚାରିଥିବ. Suppose I want to do a problem. Calculate the mass of iron which will be converted into its oxide Fe3O4 by the action of 18 gram steam on it. First question पढ़िबो ताको धरि रिएक्शन लिखियाटा वेरी इंपोर्टेंट. वंस तमे यदि रिएक्शन लिखि देला ताले सॉल्व करियाटा इजी जे तार स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखि कि खाली लिखिया. Calculate the mass of iron which will be converted into its oxide Fe3O4 by the action of 18 gram steam on it. देखो listen, mass of iron will be converted माने आयरन टा कन्वर्ट हो काहे कन्वर्ट हो तार ऑक्साइड कन्वर्ट हो. ऑक्साइड होची कोन Fe3O4 ता माने आयरन हला रिएक्टेंट आयरन कन्वर्ट हो काहे Fe3O4 एनो Fe3O4 हला कोन प्रोडक्ट का सहित आयरन रिएक्शन करियो बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ steam means hot water. The water is present in the gaseous state, so here water is also a reactant. And water भी होता है reactant. Iron react with the water for Fe3O4. आको यदि हमें बैलेंस करिवा देखो लिसन एटे हाइड्रोजन वाला कोनसी प्रोडक्ट नहीं तेनो हाइड्रोजन वाला ଗୋଟେ प्रोडक्ट रखियो पड़िबो. कम में रिएक्टेंट हाइड्रोजन अछि तो हाइड्रोजन गैस रखि देली ऑलरेडी रिएक्शन द प्रीवियस प्रॉब्लम रे कराय दिले ताको हमें बैलेंस करिया. बैलेंस करले कोन लिखिया 3Fe हबो तीनटा आयरन और प्रोडक्ट साइड अछि 3 आयरन एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड एटे लिखिबा 4H2O एटे लिखिबा हमें 4H2. देखो बर्तन देखो बैलेंस इज इन एन इक्वेशन ना द इक्वेशन इज इन बैलेंस फॉर्म. बर्तन हम देखो मास रिलेशनशिप रे लिखिबा. Iron atomic mass 56. So here I can write 3 into 56 gram. Water molecular mass is 18. So here I can write 4 into 18 gram. Fe3O4 molecular mass बाहर करियो पड़ियो 3 into 56 plus 4 into 16 ये वाला ग्राम एना होची ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ Fe3O4 एडी कोन लिखिया 4 into 2. क्लियर. चारिटा हाइड्रोजन अछि गोटा हाइड्रोजन रो मोलिकुलर मास होची 2 तेनो 4 into 2 हम कोन देइछि 18 ग्राम ऑफ स्टीम देइछि त माने इटे वाटर देइछि पचाच कोन आयरन पचाच. तो ये जो दीटा रिलेशन की आवश्यक नहीं केवल कौन आयरन को वाटर दरकार हम चाहे लिखे ना लिखे दे परिया. अच्छा कौन लिखे हमें ये जो रिलेशनशिप कौन देखला 3 into 56 ग्राम आयरन को 4 into 18 ग्राम वाटर दरकार. तो 18 ग्राम वाटर केते आयरन आवश्यक करिवो. ये जो रिलेशन रो हमें कौन लिख परिबा 4 into 18 ग्राम of water equivalent to how much 3 into 56 gram of iron. 1 gram of water तो हम कौन लिखिबा 3 into 56 gram of iron divided by how much 4 into 18. our question अछि 18 gram of water तो हमें 8 लिख
3 into 56 divided by 4 into 18 into 18 gram of iron. Clear? बर्तन आगे हम सॉल्व करिवा 18 को 18 काट परिया 4 को 56 रे काटले 14 हो तो केते आसे हमर 3 into 14 ग्राम ऑफ आयरन और आंसर कोन हो 42 ग्राम ऑफ आयरन। हमर क्वेश्चन कोन थिला केते आयरन आवश्यक पड़ियो 18 ग्राम वाटर साथ रिएक्शन करिया पे तो हम कोन लिखे देयरफॉर required amount of iron equal to 42 gram. Next I will explain about the volume relationship. Volume relationship means volume of the reactant ଦେଇଥିବ volume of the product ପଚାରିବ ନହେଲେ volume of the product ଦେଇଥିବ volume of the reactant ପଚାରିବ नले गोटे प्रोडक्ट रो वॉल्यूम देथियो आ गोटे प्रोडक्ट रो वॉल्यूम पचारियो नले गोटे रिएक्टेंट रो वॉल्यूम देथियो आ गोटे रिएक्टेंट रो वॉल्यूम पचारियो। लेट मी एक्सप्लेन विथ ए प्रॉब्लम। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड by complete combustion of 10 liter of ethane gas. Clear? ये क्वेश्चन देइछि ए क्वेश्चन को तमे आंसर बाहर करिया पड़ियो। फर्स्ट तो तुम कहथिली ई जो स्टेटमेंट बा जहां भी सेंटेंस देइछि से सेंटेंस रो रिएक्शन बाहर करियाटा होय वेरी इंपोर्टेंट। रिएक्शन बाहरला पर ताको केमिकल इक्वेशन लिखियो पड़ियो केमिकल इक्वेशन लिखिला पर तो बैलेंस करियो पड़ियो बैलेंस कला पर कोएफिशिएंट को धरि के रिलेशन अप्लाई करियो पड़ियो। अच्छा देखो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो तो रिएक्टेंट साइड रे ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड रहबो प्रोडक्ट साइड रे कार्बन डाइऑक्साइड रहबो कारण एटा प्रोड्यूस बोली लिखा है by complete combustion of 10 liter of ethane gas. Ethane का फार्मूला है C2H6 ता अर्थ इथेन को combustion कले कार्बन डाइऑक्साइड मिले बोले लिखा है। combustion अर्थ कोन मिले ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करिवा ता अर्थ आउ गोटे तमरा रिएक्टेंट मिला ऑक्सीजन so we can write C2H6 plus O2 gives CO2. Listen, here hydrogen is present, oxygen is present तो आमे एटा वाटर लिखा बाध्य ना नहीं मन रख बिले कोनोसी हाइड्रोकार्बन माने इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन या सब मैट्रिक में 9th क्लास तो कवर करथिलो ए जो हाइड्रोकार्बन यदि हम कंबक्शन करिवा ताले ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाहर है तेनो एटी जो रिएक्शन है कोन हे परियो C2H6 O2 gives CO2 वाटर हे परियो। वर्तमान हम आपको बैलेंस करिवा बैलेंस करे कोन मिलियो 2 C2H6 plus 7 O2 gives 4 CO2 plus 6 H2 एटा ला बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वर्तमान हमर क्वेश्चन कोन बचाछि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ये बचाछि कोन देछि ता बदले इथेन देछि 10 लीटर केते वॉल्यूम बचाछि वॉल्यूम देछि देखो वॉल्यूम रिलेशन है ना तो मेन रिलेशन लिखो मेन रिलेशन माने कौन लिखिया 2 into 22.4 लीटर। लिसन एटा तमरा एनटीपी दबाव पड़ियो बोले एनटीपी न देले वॉल्यूम मिलियो नै तेनो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 10 लीटर ऑफ इथेन गैस एट एनटीपी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करियो से नाते एट एनटीपी माने calculate the volume of carbon dioxide at NTP produced by complete combustion of 10 liter of ethane gas at NTP NTP रे देले ही करियो वॉल्यूम रिलेशन। क्लियर तेना हम कोन लिख परिया एटे मिले 2 into 22.4 लीटर एटे कोन लिख परिया 7 into 22.4 लीटर एटे कोन लिख परिया 4 into 22.4 लीटर एटे कोन
लिक्विड हेले हबनी 6 into 22.4 लीटर लिखिए क्लियर। तो 10 लीटर इथेन कंबक्शन हबा पारे केते लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो आमे जणिचे 2 into 22.4 लीटर इथेन रो 4 into 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर थे एडा ला हमर मेन रिलेशन। तो बगन 10 लीटर केते बाहर गाइस तो हम कोन लिख परिया 2 into 22.4 liter of C2H6 equivalent to how much 4 into 22.4 liter of CO2 1 liter of C2H6 equivalent to how much 4 into 22.4 divided by 2 into 22.4 liter of CO2 how much carbon dioxide will be liberated by 10 liter of C2H6 तो नाम एट बर्तन कौन लिख रहा है 10 liter of C2H6 equivalent to how much 4 into 22.4 divided by 2 into 22.4 into 10 बर्तन में सॉल्व करो 22.4 को 22.4 कैंसिल नेक्स्ट 2 को 4 द्वारा काट ले 2 हो तो कितना है हमारा 2 into 10 that is 20 liter of CO2 our क्वेश्चन कौन दिला केते लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो हमें कौन लिख परिया रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड at NTP equal to how much 20 liter clear next I will explain about the mass volume relationship that means mass देइथिबो वॉल्यूम पछारिबो जनकर मास देइथिबो जनकर वॉल्यूम पछारिबो let me explain with a problem calculate the volume of hydrogen liberated at NTP by treating 1.2 gram of magnesium with excess of hydrochloric acid clear एटा होई तार क्वेश्चन देखो वॉल्यूम पचारिछि मास देछि प्रथमे ई क्वेश्चन रो इक्वेशन को लिखो देखो मैग्नीशियम विथ एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिबरेट कौन हुए ना हाइड्रोजन हुए लिबरेट अर्थ निर्गत हवा तो प्रथमे हम लिख पाए हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड लिख पाए रिएक्टेंट साइड कौन लिखी मैग्नीशियम लिखी आ कौन लिखी एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक लिखी एक्सेस तार तो मैग्नीशियम सहित HCl रिएक्शन कले हाइड्रोजन मिले आ कौन मिले बिले क्लोरीन अछि बिले तो मैग्नीशियम क्लोराइड आउटे प्रोडक्ट बाहर MgCl2 वर्तमान हमर क्वेश्चन कोन अछि केते हाइड्रोजन बाहरला माने वॉल्यूम पचारला कोन देछि 1.2 ग्राम रो मैग्नीशियम देछि देखो मास को वॉल्यूम एडाला मास वॉल्यूम रिलेशनशिप अच्छा हम फर्स्ट को बैलेंस कर दियो बैलेंस करे कोन हो देखो दीटा क्लोरीन अछि गोटे क्लोरीन अछि 2 पके दियो 2 HCl ले दीटा हाइड्रोजन दीटा क्लोरीन गोटे मैग्नीशियम अछि तो मेन रिलेशन हमर कोन मेन रिलेशन हला 24 ग्राम मैग्नीशियम नेले केते हाइड्रोजन मिले 22.4 लीटर एटा किछ नै 1 is 1 into 22.4 लीटर हम जानि जे एटा मास को लीटर रिलेशन एक्चुअली मास को मास रिलेशन जानि थिले किंतु मास को वॉल्यूम रिलेशन इंटर रिलेटेड करेले 24 ग्राम रे 1 into 22.4 लीटर बाहर
1.2 ग्राम मैग्नीशियम रे केते लीटर हाइड्रोजन बाहर हम कौन लिख परिया 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इक्विवेलेंट हाउ मच 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम केते 22.4 डिवाइड बाय 24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन 1.2 gram बचा है so I can write here 1.2 gram of magnesium equivalent to how much 22.4 divide by 24 into 1.2 अब यदि हमें सॉल्व करिवा केते आसीबो 1.12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एटा होची तमरा आंसर तमरा क्वेश्चन थिला कोन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट एनटीपी बाय ट्रीटिंग 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विथ एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आंसर कोन हो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1.12 लीटर क्लियर ये होची तमरा mass volume relationship like this problem you can solve many problems there are also another stoichiometric relationship एक तो mass volume relationship है हमें volume को mass relationship भी कर परिबा क्लियर एमती गुडाए तार stoichiometric relationship करि परिबा क्लियर this is all about your stoichiometric calculation thank you have a nice day